Hello and welcome back to Management Nazariya. Today, in this video, we will understand what is leadership, what are the characteristics of a leader, and what is the task of a leader when he works in a team. As you can see in the picture below of this title, see, it's the leader who motivates his followers to climb the mountain. In the same manner, I don't know what's in your case, but मेरे पापा अक्सर ये समझाया करते हैं कि सी you're the elder daughter, you're the engine of this train. The way you will go forward, in the same manner, your siblings, your brothers, your sisters, your little ones will go further. So you are the engine. You need to be good. You need to behave and try and be the best of your version as an example, as a motivator, as a leader, ताकि वो भी तुमसे इंस्पायर होके अपने लाइफ में बेटर करे, इनफैक्ट तुमसे भी बेस्ट करे. So you are the engine and you need to go in the right direction. Exactly, this is what happens in an organization. When an leader is someone who will actually motivate you, right, towards pursuing your goal. So leadership or leadership qualities, being a leader, is something which will actually take you towards growth. वाइस वर्सा भी हो सकता है अगर लीडर ही उस तरीके का ना हो, डीमोटिवेटिंग हो, नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर रहा है, ठीक से खुद ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, काम चोरी कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो टीम उसके अंडर है वो भी डीमोटिवेट हो जाएगी. इवन दे विल नॉट वर्क, इवन दे विल ट्राई एंड इमिटेट एंड कॉपी दैट leader who is the manager of their organization of that team. तो लीडर इज समवन जो किसी चीज़ को या तो ग्रोथ की तरफ लेके जा सकता है या कंप्लीटली डिमोलिश कर सकता है. सो लीडरशिप इज बेसिकली एन आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टूवर्ड्स अ कॉमन गोल. Whenever you work as a team in an organization, जब भी आप एक टीम की तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपका गोल कॉमन होता है. वो गोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के टाइम के फर्स्ट स्टेप प्लानिंग में हम डिस्कस करते हैं. उस ऑर्गेनाइजेशनल के गोल के साथ ही साथ पैरेलली टूवर्ड्स इट इज़ आवर पर्सनल ग्रोथ and goals as to how we have to move forward in our careers and grow. So the leader is the inspiration and director of the action. He is the person in the group that possesses the combination of personality and leadership skills that makes others want to follow his direction. Leadership, now he is the person, he should be the ideal one, keeping all his personal problems aside in the organization. उसको अपना बेस्ट देना है. जब वो अपना बेस्ट देगा, ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फील होके, इंस्पिरेशनल फील होके, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग भी उस लीडर के अंडर अच्छा काम देंगे, 100% देंगे, अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे. Then what is the definition? Peter Drucker defines leader as someone who has followers. Obviously leader एक ही होता है, followers कई सारे होते हैं, एंड जो फॉलोअर्स होते हैं वो इस तरीके से ट्रेन किए जाते हैं उस अच्छे लीडर के द्वारा कि वो फॉलोअर्स फ्यूचर में जाके और बहुत सारे लीडर्स क्रिएट कर सकें. द 21 लॉ ऑफ लीडरशिप जो जॉन मैक्सवेल में लिखा है सम्स अप द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप एज लीडरशिप इज़ इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर, नथिंग लेस. लीडरशिप एक इन्फ्लुएंस है, एक प्रेरणा है कि हाँ, इवन आई हैव टू गिव माई बेस्ट, इवन आई हैव टू गिव माई 100%, आई हैव टू यूज़ 100% ऑफ माई कैलिबर टू अटेन दोज गोल्स, दोज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दोज पर्सनल गोल्स, दोज career goals. Warren Bennis gives the definition as a
leadership is focused much more on individual capability of a leader. He defined leadership as a function of knowing oneself, having a vision that is well communicated, building trust among colleagues, and taking effective action to realize one's own leadership potential. लीडरशिप क्वालिटीज़ एक रात में नहीं आती हैं. इट कम्स आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस. बहुत घिसने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद, बहुत सारी मिस्टेक्स को समझने के बाद, जब आप एक इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल फॉर्म होते हो, आपकी एक इंडिविजुअलिटी बनती है, आपकी एक सोच बनती है. और उस सोच को जब आप सही तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में कन्वे कर पाते हो और आपकी सोच से लोग सहमत होके आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ बेसिकली लीडरशिप. सो दीज आर द 3 definitions. You have to definitely write all of these 3, okay, in your examination. 3 नहीं भी लिख सकते हो तो 2 तो पक्का पक्का मेंशन करना. It gives a good impact to the examiner while collecting your papers. Then, task of a manager: development of teamwork and congenial work and climate conducive of efficient performance. एक अच्छा टीम वर्क डेवलप करना, एक अच्छा क्लाइमेट देना ताकि लोग अपना बेस्ट दे सके, इज़ द वर्क ऑफ अ लीडर. ही ऑल्सो सर्व्स एज द link between the top level managers and the middle level managers. Okay, he also provides counseling and guidance to the team members. He also ensures timeless performance. He makes judicious and authority and gives positive interactions to the people. अगर कोई demotivated feel हो रहा है और लीडर इस बात को समझ रहा है, जान रहा है, तो वो उसे बैकअप देगा, वो उसे समझाएगा, एंड ही विल अगेन बकल अप टू विद पॉजिटिव एनर्जी, ताकि वो मोटिवेट हो, उसे पुश करेगा ताकि वो अच्छा फील करे एंड अपना 100% दे. देन he extracts the maximum contribution of the team members because he is working in a team. गोल फुलफिलमेंट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ पार्टिसिपेशन रहे हर मेंबर का, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. फॉर दैट यू रियली नीड टू बी अ गुड लीडर जिसके पास एफिशिएंसी है, जिसके पास ये पावर है, ये कला है कि वो लोगों को एकजुट ला के काम करवा सके. देन further we will understand what are the characteristics of a leader. Interpersonal skills: leader are able to use their interpersonal skills to work through difficult relationships and keep the peace in their departments. बहुत सारे लोग होते हैं, उन बहुत सारे लोगों के बहुत सारी सोच होती है, उन सारे ही सोच एंड थॉट प्रोसेसेस के साथ डील करके यूनिटी मेंटेन करना इज़ द इंटरपर्सनल स्किल दैट अ लीडर शुड हैव. जब ये स्किल को वो 100% यूटिलाइज़ करता है, सो देर इज़ अ पीसफुल एनवायरनमेंट जिसमें एम्प्लॉयज़ अपना 100% दे सकते हैं. कम्युनिकेशन स्किल: अब एक लीडर जो होता है ना, वो जितना अच्छा कम्युनिकेटर होता है उतना ही अच्छा लिसनर भी होना चाहिए. इट्स नॉट ऑलवेज कि ही कीप्स ऑन स्पीकिंग एंड ही डजंट वांट टू लिसन टू अदर्स, बिकॉज कभी कभी इवन द टीम मेंबर्स वांट कि वो लीडर्स सुने, या देयर शुड बी समवन हु शुड लिसन टू देम. तो लिसनर के साथ, स्पीकर के साथ लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग पेशेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. And when he listens patiently to his team na, it actually motivates them. Then the values, as I told you in the starting itself, जैसा लीडर वैसा वैल्यू, वैसा रिजल्ट, वैसा आउटकम. पॉजिटिव लीडर, पॉजिटिव वैल्यूज़, मोटिवेटिंग थिंग्स, गोइंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस. Negative leader, wrong work practices, and hence complete wastage of time, wastage of efforts,
wastage of those resources, everything a complete waste. ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्शियसनेस, लीडर को ये समझना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के वांट्स क्या हैं, वो क्या चाहती है, क्या अचीव करना चाहती है, क्या अकम्प्लिश करना चाहती है, and hence he has to create networks among people in the organization and get the work being done. Then you have the next characteristics, that is your confidence. Leaders need to carry themselves with confidence. अगर लीडर ही कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वही अगर फंबल करेगा, तो फिर टीम कैसे काम करेगी? तो कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पर्सन, as a leader in the organization. Flexibility. Now, there are two terms which are extremely opposite to each other, flexibility and rigidity. See, rigidity is something which where people don't want to change. They are just firm on those decisions. They don't want to adjust with the current scenario. Flexibility is something which not only a leader but I feel हर इंसान में होनी चाहिए. जैसा सिचुएशन वैसे आप बन जाओ, things will be easier, situations will be solved a bit easier manner, and actually it will create peace also around you and in you. So flexibility is something which a leader should have. And क्यों? क्योंकि when you work in an organization there are always situations that keep on changing. It's not important कि जो आपने प्लान किया था उसी के एग्जीक्यूशन के साथ आप उस गोल को अचीव करो. बीच में anything can happen. The best example is the corona pandemic. I just can understand when this will get over, but still we are dealing with it. MNCs are dealing, companies are dealing, everyone is dealing. Hence we have to deal with it. तो ऐसा situations का आप predict नहीं कर सकते. तो you have to take all the possible safety precautions and still see to it that the work is being done. Then the last two more characteristics is your creative skills. क्रिएटिविटी होना चाहिए, इनोवेशंस होना चाहिए, सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम इनोवेटिव तरीके से कैसे किया जाए, ये स्किल्स होना चाहिए उस लीडर में. अगर नहीं है तो इतना पेशेंस तो होना चाहिए कि अगर कोई सबॉर्डिनेट वो स्किल्स को, उन चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहा है तो उसके आइडिया को सुन के रिफाइन करके एंड देन उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके. सो क्रिएटिव होना इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्टाइल और लीडरशिप स्किल. देन क्रिएटिव होना का ये भी मतलब नहीं होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कोई बड़ा एटॉमिक मशीन आपने क्रिएट कर दिया जो किसी के समझ में ही नहीं आ रहा है. क्रिएटिव इस तरीके से होना होता है कि सिंप्लिसिटी के साथ भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके अंडर काम करने वाले टीम मेंबर्स को आपकी बात क्लियरली समझ में आ जाए. देन यू हैव अचीविंग रिजल्ट्स. अब लीडर a big role in achieving the goals of the organization. Through his leadership skills, he maintains a high level of performance in their organization and is able to keep their workforce motivated even when they face with seemingly impossible situation. Now, achieving results. Results is something जिससे हर किसी को जज किया जाता है. अच्छे से अच्छा लीडर हो बट रिज़ल्ट ना दे, ही विल बी बीट्रेटेड. अच्छे से अच्छा इंसान हो, रिज़ल्ट ना हो, आपको बहुत कुछ सुनने मिलेगा, कभी आपके मुंह पे, कभी आपके पीछे. पीपल जनरली थिंक इफ़ नो रिजल्ट्स देन यू आर यूजलेस. दे डोंट इवन थिंक कि कितना हार्डवर्क होता है उस फेलियर को भी देखने में, कितना हार्डवर्क होता है वहाँ तक पहुँचने में. इट्स जस्ट यूजलेस, इट्स जस्ट अ ज़ीरो इफ़ रिजल्ट्स आर नॉट पॉजिटिव. तो वो लीडरशिप के स्किल्स ही होते हैं, उसकी ही वो पॉजिटिव, मोटिवेशनल, इन्फ्लुएंसिंग, इनकरेजिंग वाइब्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को पुश करती हैं 100% देने में और अपना बेस्ट करने में. सो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडेज़ वीडियो. आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा. बट इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट्स प्लीज़ डू कॉमेंट बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन.
Do like, share, and subscribe towards this channel. Please do subscribe. We are close to 1K subscribers. हमने 760 subscribers का family achieve कर लिया है. 240 to go and we will be 1K. So please do share this video as much as you can. सब्सक्राइब टूवर्ड्स दिस चैनल एकदम फ्री है, कुछ नहीं लगता है. तो जितने भी बैचलर लेवल पे 11th-12th लेवल पे पीपल हैं एंड हु वांट टू स्टडी मैनेजमेंट इन एनी पेस ऑफ लाइफ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेवर स्टॉप थिंकिंग एंड कीप इनोवेटिंग. थैंक यू.